SEBI Investors Awareness Program in Chandigarh. In association with Citizen Awareness Group and Chandigarh chapter Panchkula, Mohali chapter cost accounts. Say a few words and hand over. Good evening, friends. First of all, I feel extremely sorry for the delay in the program, but due to rain weather, this has happened. So I welcome on behalf of the Managing Committee of Chandigarh Panchkula chapter of Cost Accountants. We welcome all the audience. We are also thankful to Shri Surinder Verma ji, Chairman of Citizen Awareness Group, who have extended their hands in arranging this seminar. The topic chosen for today's program is to enlighten the audience about the basic concepts which everyone must know before investing into any type of investment. Today we are among us learned speaker Madam Himani Lal, who is having excellent command on this topic. We are hopeful that everyone will definitely grab something from today's program. As far as our current managing committee is concerned, we would like to bring to the notice of the audience that this committee was formed last year for the period of 4 years. Since then, everyone of this committee is trying to build the lost glory of the chapter which was there earlier. Not many programs have been organized since last 1 year for the members, and we are complete set of list of activities which we have pursued in the times to come. Just we would like to also bring to the notice of the members that we have also taken steps to start construction of our building. Architect has already been appointed, and this issue, as everyone known, has pending since pending since last 18 years. So let's hope that in next you can say the tenure of this committee, we will be having our own building in Mohali. Thank you. And also welcome Verma ji and Madam Himani. वर्मा जी के साथ हमारी एसोसिएशन बहुत पुरानी है, कम से कम 15-16 साल पुरानी एसोसिएशन है. दिस इज आई थिंक 5th or 6th program we are conducting with Verma ji. And very first program we conducted in Press Club, if Verma ji is still a member, when Dr. Rajkumar was here as a ROC of Ministry of Corporate Affairs. So that was a wonderful program, and after that we met at various platforms and we try to make people aware, especially in case of SEBI and the share market, because a lot of people are having different type of investments, and because we have so many products now in the SEBI, equity based mutual funds and all, and especially in commodities also. So it's a duty of all our professionals and professional bodies like SEBI or the Institute of Cost Accountant of India that we should make people aware, because people are losing a lot of money out of it, because people think that it's a easy money, but when you start investing and when you get at the year end that your capital gain is in loss, your short term gain is in loss, even in mutual fund also you have not received so much, so you get disappointed. So friends, it's always better to invest carefully, consciously, and for that Madam Himani is with us for talking to you all this. And the basic objective of Vermaji's group of Citizen Awareness Group is to make the citizens of the country aware about SEBI and share market. So to fulfill the objective of SEBI as well as Vermaji's group of Citizens Awareness Group, we have invited over here 2-3 NGOs people also. Those are very much in the public, and especially the youth which is very much interested in investment of this thing in the share market.
So with us, we अभी ने हमारे ऑफिस से एनओसी ले लिया कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं अगर वर्मा जी की ऑर्गेनाइजेशन सेबी के साथ रजिस्टर्ड होती है तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ पहले तो अपने ऑफिसर्स का कि उन्होंने इतना फेथ हमारे ऊपर किया। उसके बाद बॉम्बे हमें बुलाया गया, जैसे शर्मा जी ने बोला, कंपनी सेक्रेटरीज का, कॉस्ट अकाउंटेंट्स का और सीएमएस के हमने प्रोग्राम करवाए। एनएससी के साथ भी हमें अपना जो आरडी है हमारे रीजनल डायरेक्टर उन्होंने बुलाया, कहते वर्मा जी जितने हमारे पास एनजीओ थे ना वो सारे भाग गए। उसमें कुछ तो फेक बिल्स देते थे, इन्होंने निकाल दिए। अच्छा, कुछ अपने आप ही छोड़ गए कि यहाँ के बेनिफिट तो है नहीं यार, जितने पैसे मिलते हैं उतने लग जाते हैं। मैंने कहा सर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल वर्क, आपके साथ ही अटैच करेंगे। नाउ आपको खुशी होगी कि वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ जोन में जो सेबी के साथ काम कर रही है और हम उनको रिजल्ट्स भी देते हैं। और ये मैडम हिमानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ। अब हमारे श्रीनगर में प्रोग्राम चल रहे हैं, जम्मू में प्रोग्राम चल रहे हैं, इधर अपना लखनऊ में भी हमें इनवाइट आया कि आप हमारे प्रोग्राम कराओ। इतना मतलब रश पड़ता है तो कभी कभी ये भी कहते हैं मुझे कि सर मैं क्या करूँ, इतना बर्डन मेरे ऊपर होता है। मैं कहता अपना शांति रखो, कितना हो सकता करो, नहीं हो सकता मना कर दो। मेरे पास आगे भागे भागे कहते सर चीटिंग होगी, चीटिंग होगी, चीटिंग होगी। मैं कैसे चीटिंग होगी, मुझे बताओ तो सही यार। कहते ऐसे था, हमने बुक करवाया था, मुझे ये मिला। मैं कंपनी से बात की, सारे नॉन है फिजिकली। वो कहते जी ये तो 3 साल के लिए बुक मतलब लॉक पीरियड है। तो वो कहते कैसे क्लेम करते हैं। वो फिर कहते जी मेरे तो मालूम था क्योंकि ये करुणा सदन 11 सेक्टर में मेरा ऑफिस था पहले। तो मैं कंपनी से बात की, मैं कह यार ऐसे कहते कि लॉकिंग पीरियड है, हम तो आपको पता ही है वर्मा जी हम दे नहीं सकते। वो फिर कहने लगी, कहती जी मुझे मेरी बोल तो नहीं हो रहे सर क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बातें करता हूँ, पता टेक्निकल नॉलेज नहीं है मेरे को, मैं तो जनरल बातें अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। ये बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा, उसके बाद सर वो 2245 रुपये, 2225 और 2450 रुपये उसके अकाउंट में आते हैं। उसके बाद मेरे को कहती जी मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होना है, मेरे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो वापस करवा दो। मैं उससे बात की, मैं कहा मैडम ये कौन सी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है जो वापस करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल तो है नहीं, ये तो कमर्शियल काम है। कहते नहीं बात करके देखो, बात करके देखते हैं। उनको मिलता है 5 लाख का 3,60,000 रुपये, वो भी अगर वो ट्रेडिंग में जाते हैं तो। वो कहते हैं कि वैसे तो वापस नहीं कर सकते, ट्रेडिंग में जाए। मैंने उनको समझाया, मैंने 5 लाख को अगर आप बैंक में भी जमा करवाते तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलना था, कम से कम आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ होता है ना। What is stock market? What is investment? So हम हमेशा ये गाइड करते हैं कि आपको इन्वेस्टर बनना है। आपका जो फोकस होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करने के लिए होना चाहिए रादर देन ट्रेडिंग करना। और सबसे ज्यादा जो लोग लॉस करते हैं वो एफएनओ में करते हैं, क्योंकि 90% का ये रेशियो है ऑलमोस्ट कि 90% लोग लूज आउट करते हैं। सेकेंडली, बहुत सारे लोग हैं जो अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आपने क्रिप्टो का नाम सुना होगा, राइट? तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि ऑथराइज्ड नहीं है। और यहाँ पर अगर कोई रेगुलेटर नहीं है किसी प्रोडक्ट में तो आपके पास कोई रिकॉर्स नहीं है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई ग्रीवेंस हुई, कोई भी इशू हो तो आप किसको अप्रोच करोगे। सो हमेशा रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स और रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज, जो भी आप जिस भी ब्रोकर के साथ कर रहे हो, इवन अगर आप किसी से इंश्योरेंस भी ले रहे हो तो वो पर्सन ऑथराइज्ड होना चाहिए, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। सो मेन सेशन पर आते हैं। सेबी। सेबी कौन है आप लोग जानते हैं? जो इन्वेस्टर है उनको तो पता होगा, तो उसके अलावा कौन मुझे बताएगा? एनीवन? सो हमारी कंट्री में बेसिकली 4 रेगुलेटर्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट और कैपिटल मार्केट्स को कवर करते हैं। सेबी, जैसे हमारा घर में कोई हेड ऑफ द फैमिली होता है, वैसे ही कैपिटल मार्केट का जो हेड है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बैंकिंग का कौन रेगुलेटर है? आरबीआई। पेंशन का कौन रेगुलेटर है? जो एनपीएस एक स्कीम है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। एनीवन? गूगल करे बिना तो हिंट भी दे देती हूँ, पी से स्टार्ट होता है। हाँ,
हाँ उसका यस पूरा फुल फॉर्म पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। ओके और एक और कौन रेगुलेटर है बैंकिंग का, और ये हो गया RBI। एक और रेगुलेटर है इंश्योरेंस का, वो कौन है IRDA। सो बेसिकली 4 रेगुलेटर्स हैं जो हमारी पूरी कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट को गवर्न करते हैं। तो सेबी कौन है और क्या काम है उनका, यही काम है जैसे आज हम लोग आप सेबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना। आपने सुना होगा लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले जनरली डीमैट अकाउंट्स फिजिकली ओपन होते थे, आप लोग फॉर्म्स फिल करते थे, ब्रोकर के ऑफिस जाते थे या वो आपके घर आते थे। बट इस दौरान, ये क्रूशियल टाइम के दौरान सब डिजिटाइज्ड हो गया। तो आपने सारी ऐप सुनी है, ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, है ना। घर बैठे आप ये ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं और डिजिटाइज्ड वे में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये भी एक ट्रांसपेरेंसी का पार्ट है, एक ईज का पार्ट है। एक और इम्पोर्टेंट उन्होंने जो अपडेट डेवलपमेंट किया है, आपको ये सुना है आप लोगों ने T+1 या T+2, क्या होता है ये? ट्रांजैक्शन प्लस वन डे में उसके पैसे आने के बाद। हाँ जी, तो आपने अगर ट्रेड किया मंडे, यानी कि आपने कोई बाय या सेल किया, तो जो उसका सेटलमेंट है वो कब होगा? नेक्स्ट डे। तो ये सेटलमेंट साइकिल एक पॉइंट ऑफ टाइम पे T+15 होती थी, वो रिड्यूस होके 7 हुई, देन 3 हुई, देन 2 हुई, और आज के डेट में हम T+1 पे हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट है जो सेबी ने किया है, बिकॉज इससे आपके जो फंड्स हैं वो स्टकअप नहीं होते, फास्ट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। एंड 25 स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जिन पर अभी टेस्टिंग चल रही है एक्सचेंजेस में T+0 पे। तो वो टाइम भी बहुत पास है हमारी कंट्री में, जब हमारा जो सेटलमेंट है, यानी मैंने आज परचेज किया, आज ही मुझे शेयर्स शाम तक मेरे अकाउंट में मिल जाएंगे। तो दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड आसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय बैंक अकाउंट। सो ये हो गया प्राइमरी मार्केट। अगर मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला, इट्स ओके, बाद में वो जब लिस्ट होगा तो मैं डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से भी ले सकती हूँ थ्रू द हेल्प ऑफ अ ब्रोकर। तो दैट पार्ट्स कम अंडर द सेकेंडरी मार्केट। नाउ ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर हम लोग यही चीज इग्नोर कर देते हैं। हमें उस कंपनी के बारे में जानना, क्या उसका कैसा प्रॉफिट्स है या डिविडेंड डिक्लेरेशन कैसा है, ये सारे पॉइंट्स उसके समझने बहुत जरूरी है। As a shareholder, when you become a shareholder, you get the ownership of that company to the extent of the shares. So क्या-क्या benefits मिलते हैं as a shareholder? Dividend मिलता है, बोनस मिलता है, राइट्स इशू, बायबैक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वोटिंग राइट्स भी, और एक और इंपॉर्टेंट चीज वो एजीएम्स में मिल जाता है ना। अब तो उसके लिए ई वोटिंग हो गया, ई वोटिंग में कोई वोचर नहीं मिलता है, घर बैठे वोट दो, एजीएम में जाने की जरूरत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यस, कैपिटल एप्रिसिएशन, दैट इज हाउ यू आर अर्निंग। ओके, सो ये सारे बेनिफिट्स एज अ शेयर होल्डर हमें मिल रहे हैं। तो व्हेन आई एम नॉट एबल टू सेट अप अ बिग बिजनेस like a Reliance Industries or a Nestle company or Hindustan Lever, the only way I can participate in that growing business is by buying those shares simply. Okay? So और आजकल बहुत सारे YouTube पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप में से कितने लोग उनको फॉलो करते हो? सुनते करते अपनी है, ये अच्छा है फिर भी, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स या टेलीग्राम ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सब इन्वेस्टमेंट टिप्स जो शेयर करते रहते हैं, इनको फॉलो करने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो वो शेयर कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी वीडियो बना के डाल सकता है, तो बी कॉशियस अबाउट दैट। एंड मोर ओवर एक चीज और अंडरस्टैंड करिए, जितना हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, उतने साइबर क्राइम्स और उतने बहुत सारे इस तरीके के इश्यूज भी हो रहे हैं। जैसे आजकल आरबीआई बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स दे रहा है कॉशियस करने के लिए आप लोगों को। तो यही होता है कि फिशी मैसेजेस पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे पैसे डेबिट हो जाते हैं। हम पासवर्ड्स ऑटोमेटिकली सेव करके रखते हैं, स्पेशली नेट बैंकिंग वगैरह के, क्योंकि ये जो फोन है वो हमारा चलता फिरता बैंक ही है आज की डेट में, सारा कुछ तो हम इसी में कर रहे हैं। तो आपको इसको लेके भी बहुत कॉशियस रहना है। ओके, तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। अवॉइड टेकिंग लोन्स, अवॉइड टेकिंग लाइबिलिटीज, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो ईएमआई पे बहुत बिलीव करते हैं, तो कुछ भी लेना है ईएमआई पे लेना है, तो दैट इज आल्सो अ रॉन्ग हैबिट। सो ओनली 2 लोन्स आर कंसिडर्ड टू बी द गुड लोन्स। कौन कौन से हैं? होम लोन,
और नहीं, एजुकेशन सबका प्लानिंग कुछ अलग है। तो एजुकेशन लोन, क्योंकि यही दो वैल्यू क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में, या हम जिसके लिए ले रहे हैं उसकी लाइफ में। ओके, सो यही दो गुड लोन्स है। और मैरिज लोन तो बिल्कुल नहीं लेना है, सर की एडवाइस फॉलो मत करना। ये सर भी वही है, शर्मा जी है ना, क्या लग गया, कुमार साहब। ओके, और साथ ही ऐप है, ये भी फ्रीली अवेलेबल है, आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो। फाइन, तो थैंक यू सो मच। बिकॉज हम सस्टेनेबिलिटी पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम उस एनजीओ में या उस डिपार्टमेंट या वैसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है जो बैनर लगाया, काम हो गया और चले गए और अगले दिन अखबारों में पिक्चर आ गई। ये हमारा देश है और मैं मानता हूँ कि एक युवा होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रति, मेरे समाज के और देश के प्रति भी है। मैं यहाँ पर सोशल वर्क में जो मेरा पैशन और प्रोफेशन है, पैसा कमाने के लिए नहीं है। और धीरे धीरे पता लगा कि आप कंसल्टेंसी में काम करते हो, तो मैं जॉब भी करता हूँ एनजीओ के साथ मिलकर, एज ए कंसल्टेंट भी काम करता हूँ। सारी चीजें पैरेलली बता रहा हूँ क्योंकि लोगों के मन में रहते हैं ये एनजीओ चलाने वाले अर्न कैसे करते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो जो 4 चीजों में हम लोग काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट, यूथ एंड स्टूडेंट एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट पर, उसमें आप जितना मर्जी सोच लो, एक युवा और एक स्टूडेंट की उन्नति और तरक्की और उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो कुछ हो सकता है पूरे यूनिवर्स में, हम वो सारी चीजें करते हैं। आपको ये आइडिया लेकर आओगे तो हम वो भी करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा हमारे आने वाले टाइम में डिजास्टर है वो है क्लाइमेट चेंज को लेकर। हम भुगत ही रहे हैं, जहाँ पर धूप नहीं आती थी वहां पर तूफान आ रहे हैं, जहाँ पर कभी बारिश नहीं हुई वहां बाढ़ आ रही है। तो हम इस चीज पर भी प्रोफेशनली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ या उनके जो एटमिनियस बॉडीज हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत में जो सबसे बड़ा लूप होल है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, बहुत सारी स्टेट और सेंटर की पॉलिसीज है जो गरीब तबके के लिए या जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ब्रिज बनकर हम डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर वो सारी योजनाओं को लोगों तक ले जाते हैं, जिसमें विमेन एम्पावर भी हो जाता है और मैन एम्पावर भी हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है। साथ में वी आर आल्सो वर्किंग ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। बड़ी जल्दी हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, 500 बच्चों को चंडीगढ़ में ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर से भी हमारे सपोर्ट कर सके, इट विल बी गुड फॉर अस। वी आर लुकिंग सम पार्टनर्स फॉर दिस सेम। 500 बच्चे रहेंगे तो आने वाले फ्यूचर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे भी। 5वां जो हम सबसे यूनिक अपना काम समझते हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी। वी आर गो विद फ्लो। हम वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कोई ओल्ड स्कूल टाइप है कि वो सैनिटरी नैपकिन बांट रहे हैं तो वही बांट देंगे। जरूरत तो देख लें कि उसकी अब है या नहीं। आई लिव इन चंडीगढ़, यहाँ पर सारे सबको पता है कि ये चीज है, तो हम उन चीजों पर काम करते हैं जो कि समय के हिसाब से जरूरी है। एआई, आज पहले के टाइम पे सोना इन्वेस्ट होता था, आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट का काम और इन्वेस्टमेंट का नाम दोनों बदल गया है। सो समय के हिसाब से हम चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग हमेशा ही खुले हैं कि आप आइडियाज लेकर आइए या हम आइडियाज लेकर आए। वी आर रेडी टू वर्क बिकॉज वी बिलीव इन पार्टनरशिप बिल्डिंग। जय हिंद, जय भारत। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में एक प्राइमरी टीचर था और मैंने वहाँ देखा, जब हम बात एजुकेशन की करते हैं तो बात स्कूल की करते हैं, बात टीचर की करते हैं, लेकिन हमारे देश में कितने ऐसे स्कूल हैं। आप चंडीगढ़ की बात कीजिए, आप पंचकुला की बात कीजिए, मोहाली की बात कीजिए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इतने टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी एजुकेशन नहीं है। हमारे देश में एक अभियान चलता है, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 8वीं तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। जैसे ही बच्चा 8वीं पास करता है, सरकार को उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा जो 8वीं के बाद के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनका क्या होता है। और 8वीं तक की भी बात करूँ तो मैं 250 रुपए से लेके 1200 रुपए तक का उनको सारा पैसा मिलता है, जिसमें उनको सारी चीजें करनी है। और वो इतने गरीब परिवार से आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, वो जो पैसा है उन पेरेंट्स के खाते में जाता है और वो पेरेंट्स क्या करते हैं, जब 1000-1200 रुपए खाते में देखते हैं तो घर का कोई सामान लेके आते हैं, बच्चा वैसा का पैसा। सर्व शिक्षा अभियान डॉक्यूमेंट के ऊपर चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। देखो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, मैं नहीं मानता सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। एक्चुअली समाज में हम ही हैं, हम ही टीचर हैं, हम ही सारी चीज हैं, हम ही पेरेंट्स हैं। तो एक 7 साल पहले एक मुहिम की शुरुआत की, इसी चीज को देख के मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी वहाँ पे, और मेरे मन में एक ख्याल आया क्यों नहीं इसको एक मुहिम में आगे बढ़ाया जाए। तो वहां से शुरू हुआ रद्दी से शिक्षा। जैसे ही रद्दी का नाम आता है तो अखबार दिमाग में आता है। हम अखबार बिल्कुल भी अखबार पे काम नहीं करते हैं।
रद्दी क्या है? हमारी पढ़ी हुई किताब, हमारा ये जो पेन है, ये पेन हम इस्तेमाल करते हैं, 10 रुपए का मार्केट से पेन लेके आते हैं, ये पेन खत्म होता है, इसको हम फेंक देते हैं। एक्चुअल हमने इस्तेमाल किया है 1 रुपये 25 पैसे की इंक, और इसकी जो पूरी बॉडी है यानी 8 रुपए हमने इसको फेंक दिया। तो वहाँ स्क्रैप टू एजुकेशन हमारी ये मुहिम है और इस पे हमने काम किया। इसी तरीके से हमारे रजिस्टर हैं, आधे भरे आधे खाली होते हैं, तो खाली पेज निकाल के, शार्पनर होती है, शार्पनर, आप सोचोगे शार्पनर का क्या इस्तेमाल है? किसी का कटर खराब है, किसी की बॉडी खराब है, इसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा पेचकस की आवश्यकता है। जिसका कटर खराब है उसकी बॉडी लगा दी, एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया। तो इसके ऊपर हम काम करते हैं, 7 साल में काम करते करते, और 7 साल में हम 1.5 लाख से ज्यादा किताबें बांट चुके हैं। और ये किताबें बांटने का जो माध्यम है, हमारे पास 2 मोबाइल लाइब्रेरी हैं जो ट्राई सिटी में घूमती हैं। अगर आपके घर किताब है तो आपने जस्ट फोन करना है, आपके सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपके घर की रद्दी को हम लेके जाएंगे, क्योंकि पढ़ने के बाद तो हम उन किताबों को रद्दी समझते हैं। हम क्या करते हैं, पढ़ाई करने के बाद उन किताबों को सजा के अलमारी में रखते हैं कि भविष्य में कभी काम आएंगी। 1, 2, 3 साल बाद हम जब सक्सेस हो जाते हैं, लाइफ में शादी हो जाती है, होली दिवाली पे हम सफाई करते हैं, सफाई करते ओहो ये इतनी सारी रद्दी, क्योंकि अब तो उनका काम नहीं रहा हमारे जीवन में, इसलिए वो रद्दी लग रही है। लेकिन वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए वो रद्दी नहीं है। तो जिन किताबों को पढ़कर आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं, उन्हीं किताबों को पढ़कर ऐसे बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो भी सपने पूरे कर सकते हैं। इसी के साथ हम हर साल 600 बच्चों को, जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, ऐसे सभी बच्चों को, ट्राई सिटी के अंदर काम करते हैं, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, तो उन सारे बच्चों को पूरे साल का रिसोर्स हम देते हैं। उनका स्कूल बैग है, उनके पूरे साल की नोटबुक, पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर। क्योंकि चंडीगढ़ तो पढ़ा लिखा शहर है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में आज न जाने कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। और जो लोग हमारे घरों में काम करने आते हैं, कोई हेल्पर का काम करता है, कोई खाना बनाने का काम करते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए देते होंगे? हमारे 15,000 से ज्यादा हम देते नहीं है, ये हमें खुद पता है। हमारे घरों में काम करते हैं, 15,000 रुपए एक महिला को मिलते हैं जिसके हस्बैंड नहीं है, 5,000 रुपए का रेंट है, 5,000 रुपए का खाना है, 5,000 की सारी चीजें। क्या वो बच्चों को एजुकेट कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ऐसे 500 बच्चे हैं और 110 बच्चे अनाथ और सिंगल पेरेंट और हैं, उनका सारा खर्चा हम उठाते हैं। और इसके अलावा जब बात किताबों की आती है तो हम सिर्फ जरूरतमंद को ही नहीं देते हैं। अगर आप शौकीन हैं किताब पढ़ने के, तो हमारे पास आप जैसे लोगों ने ही नोवेल, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इंफॉर्मेटिव, स्टोरी बुक आप लोगों ने ही दी हैं। तो पब्लिक प्लेसेस पे छोटी छोटी लाइब्रेरी बनाई है हमने। आप सेक्टर 34, सेक्टर 44, सेक्टर 48, पंचकुला 9, 15, पंजाब यूनिवर्सिटी, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे छोटी छोटी लाइब्रेरी देखेंगे। फोन कंट्री में ये कॉन्सेप्ट होता है, वहां से किताबें चोरी होती हैं, लेकिन ठीक है, चल रहा है, क्योंकि इंडिया है तो कुछ चीजें तो हमें क्लियर करनी पड़ेंगी ना। तो इसी तरीके से ये छोटा सा अभियान है, और इस अभियान की जो तारीफ है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में भी कर चुके हैं, और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी कर चुके हैं। और मेरा लास्ट में आप सभी से एक ही निवेदन है कि आपकी पढ़ी हुई जो किताबें हैं वो रद्दी का नहीं, वो शिक्षा का जरिया बने। तो आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बात कही कि हमारे पास 500 बच्चे हैं, 110 बच्चे हैं, हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करते उसके ऊपर। 110 बच्चों के 110 डोनर हैं। एक बच्चे की हमने खर्चा निकाला, कितना खर्चा है पूरे साल का, सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस जो सोशल मीडिया है उसका हमने भरपूर फ़ायदा लिया है। स्टेटस पे लगाया, इसका नाम संदीप कुमार है, ये 11वीं कक्षा में है, ये अपनी पढ़ाई का खर्च उठा नहीं सकता। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जबकि अनिल सर भी उनमें से एक हैं, सर की वाइफ भी उनमें से एक है, वो कहते हैं भी 1 साल का खर्च हम देंगे, और मात्र 5100 रुपये खर्च आता है। 5100 रुपये में पूरे साल की किताबें आती हैं, पूरे साल की नोटबुक आता है, पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, सारी चीज़ आती हैं। तो बस इस तरह की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैम, हम उम्मीद है कि हम वहाँ पे पहुँचे, लेकिन पहले हमारी जो ट्राई सिटी है वो प्रायोरिटी है। अपनी संस्था का नाम एक बार और बता। सर, संस्था का नाम है ओपन आइज फाउंडेशन।
तो नाम सुन के ऐसा लगता है कि हम आंखों का कोई ऑपरेशन तो नहीं करने वाले नहीं, आप ऑपरेशन ही कर रहे हो लोगों के विजन को। हाँ, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, हम लोगों के मन की आंखें खोलने का काम करते हैं। हम जस्ट अवेयरनेस कर रहे हैं, अपनी जो एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, और जो देने वाले हैं वो आप लोग हैं, लेने वाले वो बच्चे हैं। हम तो बीच का काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस। थैंक यू This is a wonderful session, and participation of all the people sitting here is tremendous. And thank you, Himani madam. Thank you, Surinder Verma sir. So, because without them, this program couldn't have been possible. Now, it is a token of regard from our side, from the Chandigarh Panchkula chapter of Cost Accountants. So, I will request our past chairman, Aman Kalra ji, to come forward and present the memento to Shri Surinder Verma ji. एक्चुअली हमारी जो करंट कमेटी है उसके फर्स्ट चेयरमैन हमारे अमन कालरा जी थे, और इन्हीं की सपोर्ट से हमने ये मोमेंटम चलाया हुआ है, एंड वी होप दैट इन द फ्यूचर आल्सो द सेम मोमेंटम वी विल मेंटेन बिकॉज आवर मेंटर्स आर देयर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू अमन जी. नाउ बिकॉज आज का जो कहते हैं ना, जो पूरा वो था समा जो बांध के रखा, वो मैडम हिमानी ने बांध के रखा. एंड वी फ्रॉम आवर साइड आई विल रिक्वेस्ट आवर पास्ट चेयरमैन ऑफ दिस चैप्टर मैडम गीता ढिंगरा टू कम फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट मोमेंटो टू मैडम हिमानी. वंदना मैडम, प्लीज कम फॉरवर्ड प्लीज. सो सभी के लिए बेसिकली रिक्वेस्ट है कि तालियों से स्वागत करें प्लीज. Thank you very much. Now I will request our Anil Gupta ji for vote of thanks. Thank you, Sanjay ji, for giving me an opportunity for delivering vote of thanks for today's program of investor awareness and role of SEBI. In association of our citizen awareness group, I am thankful to today's keynote speaker, Madam Himani ji and Surinder Verma ji, for sharing their invaluable thoughts and experience among all of us. They have explained the concept thoroughly and enlightened all of us. I am also thankful to our NGOs, from Mr. Rohit from Global Youth, Mr. Munish from Victory India, and Mr. Sandeep from OpenAI, who have spared their time and joined our seminar. I am also thankful to Mr. Mahinder Singh from our Nangal chapter to join us. I am also thankful to all the participants who joined the seminar from the busy schedule. I am thankful to all and for joining, and have a wonderful session.